Assalamu alaikum, everybody, and welcome back to another session with Live on Shifam. This is Rabia Aziz, your host, and again, like every other day, बहुत सारी information, बहुत sensitive information, बहुत आपको हिला देने वाली information, क्योंकि it's not like that information or that awareness is not available. It's just that आपने कभी उसमें टैप इनटू नहीं किया या कभी आपके तरफ इस तरह की इंफॉर्मेशन आई नहीं एंड दैट इज व्हाट शिफाम इज ऑल अबाउट that is those are the principles of Shifam. Currently we are just not a digital healthcare platform, but Shifam is trying to raise awareness, raise advocacy, and raise a lot of important questions in the society जिससे हम सब benefit कर सकते हैं. There is so much going on right now. Cases are rising. बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जो हमारे होते थे वो कोविड पॉजिटिव हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बीमारी तो फैली ही हुई है लेकिन एक अनसर्टेनिटी जो पिछले 11 महीने से चल रही है. How are we coping with that? How are you feeling today? All those who are tuning in right now and बाद में tune करेंगे, आप आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? This is one of the conversations we are having this whole week, this whole month. How are we feeling? How are you feeling? And it has been very stressful because the situation is of COVID-19, is of a pandemic. There's financial stresses, there's work stress, there's the stress of knowing that loved ones or near ones are either have passed away from COVID, are suffering from COVID, or you don't want them to contract COVID. And इसीलिए हमारी safety हमारे हाथ में है. So there is no shame involved in saying no. किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप उनको बोलें कि प्लीज मास्क पहने, एहतियात करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें. एंड अगेन बहुत सारी बातें. But today we are talking about discrimination, mental health, and how can we offer emotional support not just in times of COVID, not just in times of this pandemic, because ये pandemic तो अभी स्पेनिश फ्लू के बाद इतना बुरा आया है जो स्पेनिश फ्लू को जानते हो. लेकिन इमोशनल सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, फॉर marginalized communities, for persons who are discriminated upon in our society or looked with different eyes, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं? हम अपनी स्पीच में, अपनी टोन में, अपने फेशियल फीचर्स में और जिस तरह हम किसी और पे अपनी नज़रें डालते हैं और किसी और को अप्रोच करते हैं और एड्रेस करते हैं, तो हम अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? So these are all the kinds of conversations we are going to be having today with a very very special guest. And मैं उनको अपने साथ स्ट्रीम पे लेके उनका तारुफ कराती हूँ. We have Miss Leila Afsar with us, and उनको मैं introduce कराती हूँ while we take her on stream with us. अस्सलाम वालेकुम Leila. वालेकुम सलाम राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Leila, how are you feeling today? I'm feeling good. Great, It's great. a nice cold Saturday. It was a very cold Friday. कल रात काफी मुझे तो काफी ठंड लगी. It was quite a shift. हम फौरन से 27 डिग्री से 17 डिग्री पे इतनी जल्दी आए हैं जिसकी कोई हद नहीं. लेकिन Leila, let me give a brief introduction about you. Leila is a corporate lawyer. You are also a co-founder of the Non-Binary Collective and the founder of Spectrum Therapy and Mediation, which is a Facebook group under Facebook/Spectrum TM. Leila, there's so much under your bio, your profile that we can talk about, right? But
but one of the, and you are have been talking and raising awareness for a while now. um Coming to the most important thing that जब मैं आपको रिसर्च कर रही थी, आपसे बातचीत कर रही थी, और मैं आपका एक पॉडकास्ट भी सुना मैंने. There is a very important not definition, but an alarming situation that you've raised, which says addressing people the way they want to be addressed. Mhm. Right? So let's start from the top कि हम किस तरह किसी को एड्रेस कर सकते हैं. Sensitivity, being very mindful of the terms we are using, and coming towards marginalized communities. So let's talk about how we address people. ठीक है. So ultimately ये जो होता है, it is about treating someone like a human being. उनकी इंसानियत ना भूलने की बात होती है. तो आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर आप assumptions के साथ आते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं इनको ऐसे ट्रीट करना है क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में ऐसे हैं. हालांकि वो अपने आप को कुछ और तस्वीर करते हैं. तो इसमें एक, अगर आप काफ़ी अरसे से अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स या इस तरह की चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो उसमें गोल्डन रूल की बात होती है अक्सर कि ट्रीट एवरीवन हाउ यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड. और उसमें एक खामी होती है गोल्डन रूल में कि ये है कि आप अस्यूम कर रहे होते हैं कि दूसरा आपकी तरह ही ट्रीट होना चाहता है. क्योंकि अगर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल है या कोई डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल है, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे मुश्किलात होंगे जो आपको शायद समझ नहीं आए होंगे. उसके वजह से उनकी हाउ दे वुड लाइक टू बी कॉल्ड, हाउ दे वुड लाइक टू बी ट्रीटेड विल बी डिफरेंट फ्रॉम जैसे जो आप अपने आप को अस्यूम करते हैं. सॉरी लैला, मैं यस हम लोग थोड़ा सा ब्रेकअप कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक लूं. ओके. हमारी आवाज क्रैक कर रही थी, एंड आई डोंट इवन वांट कि आपकी एक भी कोई बात क्रैकल हो, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है व्हिच आई ऑलरेडी नो कि जो आप डिस्पेंस करने वाली हैं. सो सॉरी, यस, सो डोंट माइंड मी. अगर आपकी आवाज थोड़ी सी भी टूटेगी तो मैं आपको Absolutely fine. ठीक है. Are we okay now? Can I go ahead? Yes, we are good. We are good. ठीक है. तो गोल्डन रूल ये होता है कि ट्रीट एवरीवन लाइक यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड. ठीक है. उसमें एक मिसिंग पीस ये है कि आपको ये नहीं पता कि दूसरी की जिंदगी में ऐसी ऐसी कैसी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद वो दूसरी तरीके से ट्रीट होना चाहे, जैसे आप अस्यूम करते हैं कि मुझे खुद ट्रीट होना है. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को देखते हैं और आपके सामने कुछ आप अस्यूम करते हैं कि इनका जेंडर ये है और वो अपने आप को कुछ और तस्लीम करते हैं, तो आप अस्यूम करेंगे कि वो प्रोनाउंस आप इस्तेमाल करेंगे उनके लिए जो आप समझते हैं. उनको देख के आप अस्यूम करते हैं, मगर वो शायद कुछ और इस्तेमाल करते होंगे प्रोनाउंस. तो उनसे फिर पूछना होगा कि आप हाउ वुड यू लाइक टू बी एड्रेस्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड. आप उनका नाम क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे. तो अगर आप अस्यूम करते हैं कि आई लाइक टू बी ट्रीटेड, मेरा लीगल नेम ये है, मेरा सेक्स असाइन एट बर्थ ये है और मैं यही प्रोनाउंस इस्तेमाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आई अस्यूम कि मैं हर एक ऐसे ही होगा, तो वो एक मिसिंग चीज़ है. तो एक प्लैटिनम रूल काफ़ी लोगों ने निकाला है, बोला है कि ट्रीट अदर पीपल हाउ दे वुड लाइक टू बी ट्रीटेड. जैसे आपने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोनाउंस यहाँ डाल दिए शी हर, बिकॉज इट्स अ वे फॉर मी टू रेज अवेयरनेस के प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं. ऑब्वियसली मेरी आवाज़ भारी है एंड आई एम ट्रांस माई सेल्फ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यू नो if people haven't seen me or they're not aware of who I am, वो शायद he him pronouns मेरे लिए इस्तेमाल करें. But that is not the case. I actually go by she her pronouns and I go by the name Laila. It's, you know, तो ये एक बहुत अहम चीज़ होती है जब आप बात करते हैं how people would like to be treated. Now, if we are talking about more general terms in terms of कि कैसा इंसान है, अब ये तो सिर्फ नाम और pronouns की बात हो रही है, उसमें तो रहन सहन भी होता है, उसमें आपका कपड़े पहनने का भी खुलिया कैसा होता है आपका, उसकी भी बात होती है, जेंडर रोल्स की बात होती है, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है. बिकॉज जेंडर इज सच अ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पार्ट ऑफ हमारी ज़िंदगी. जब हम पैदा ही होते हैं, सबसे पहले जो अगर आप अनाउंस करते हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि उनका जेंडर क्या है, हुआ या लड़की, लड़का हुआ है या लड़की.
उस वक्त से ही आपका मतलब आपकी एक ट्रैक आपकी जिंदगी में आपको डाला गया होता है कि ऐसे ही आपकी जिंदगी ऐसी होगी, आपको ऐसा ऐसी चीजें ऐसी बातें करनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा रहन सहन करना है एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें जो हैं शुरू से आती हैं। आप जब आपके मार्जिनलाइज इंडिविजुअल होते हैं, मैं अक्सर ट्रांस लोग की बात करती हूँ, उसमें वो दे ब्रेक दैट स्टेरियोटाइप के बिल्कुल। जो बचपन में जब पैदा हुए थे तो उनको कुछ कुछ बोला गया था, बट वो अपने आप को कुछ और तस्लीम करते हैं। नाउ आपको अडेप्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ट्रीट समवन जैसे वो अपने आप को तस्लीम करते हैं। तो उसमें फिर आपके हर किस्म की चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें जो अभी मैंने जो लिस्ट की थी, जैसे उसमें बिल्कुल। कपड़े बिल्कुल। पहनने की, बात करने की, जेंडर रोल की। एंड उसमें एक और वेरिएशन ये होती है कि हर एक जो है ना बिल्कुल उस मोल्ड को बिल्कुल स्टेरियोटिपिकली तरीके से नहीं फिट करता है। तो आपके जैसे औरतें भी होती हैं, औरतें काफ़ी दे माइट हैव ways of presenting या पर्सनालिटीज ऐसी जो स्टेरियोटिपिकली फीमेल नहीं हो, वुमनली नहीं हो, लेडी लाइक नहीं हो, जैसे हम अपने सोसाइटी में समझते हैं। इसमें कोई कोई मसला नहीं है, there's absolutely nothing wrong with that, same with men, same with other genders. um, and we just have to accept people for who they are instead of trying to change them, क्योंकि उसमें फिर आपका मेंटल हेल्थ के बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड अगेन हम जैसे कि आपने कहा कि बचपन में जब बचपन से ही पूछा जाता है कि आप आपका जेंडर क्या है, आपका सिंफ क्या है, हैं। एंड उस उधर से एक शुरू हो जाती है गुफ्तगू के, अच्छा लड़की हो तो ये हो, लड़का हो। बट अगर हम लोगों को आगाही देना चाहें और बताना चाहें कि नहीं, सही है, हमारे मुआशरे में ये नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम्म there are that many diverse communities and that many diverse sexes and genders, तो आप उसको किस तरह सेंसिटिवली, क्योंकि हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो हम्म चुकी है लैला, एंड आई थिंक बेस्ट कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन दें कि किस क्या किस्मत हो सकती हैं, जैसे मेल फीमेल, and then there goes on a line. So I हम्म will hand it over to you because you put it beautifully for me. So श्योर। तो सोसाइटी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेक्स सिर्फ दो होते हैं, और लोग समझते हैं सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो है सोसाइटल। हालांकि इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट। साइंस में भी अगर आप देखते हैं, अबाउट 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन जब कोई पैदा होता है, डॉक्टर उनके अज़ा देखता है और बोलता है कि मुझे क्लियर नहीं है कि ये मर्द है या औरत है। ठीक है, तो वो आपकी एम्बिगुअस जेनेटेलिया की बात होती है उधर, एंड दैट्स नॉट द ओनली वे जिसमें आपका मेल या फीमेल में क्लियरली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उसमें आपके क्रोमोसोम्स भी आ सकते हैं, आपके हार्मोन्स या हार्मोन रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जिस्मानी तौर पे वो भी एम्बिगुअस हो सकते हैं या वेरीड हो सकते हैं, जो क्लियरली मेल या फीमेल बकेट में नहीं आ सकते। एंड दीज आर नेचुरल वेरिएशन जो इंसान में होते हैं। मतलब 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ लॉट। मतलब आप जिंदगी में हर एक इंसान ने किसी ना किसी इंटरसेक्स या मल्टीपल इंटरसेक्स लोगों के साथ इंटरैक्ट किया जरूर होगा। absolutely। तो एक ये है सेक्स, सेक्स की बात ये होती है। अब जेंडर के बाद जब आते हैं हम बोलते हैं कि सोसाइटी जो है जेंडर उन्होंने ये जेंडर रोल्स जेंडर नॉर्म्स सारे इन्वेंट किए हैं, और वो दे नॉट नेसेसरली फिट विद आपके सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। उसमें ये होता है कि देर इज नथिंग अबाउट हैविंग सर्टन बॉडी पार्ट्स दैट मीन्स कि आपको ऐसे एक्ट करना है या वैसे एक्ट करना है या ये कपड़े पहनना है वो कपड़े पहनना है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमको सिखाई जाती हैं कि आप अगर आप लड़का है तो आपको ये करना है, आप लड़की है तो आपको ये करना है। अब उसमें चैलेंज अक्सर ये आता है, जैसे अगर कोई इंटरसेक्स शख्स है तो वो क्लियरली लड़का या लड़की नहीं है। आ, तो उसमें फिर आपके माँ बाप जो होते हैं या उनके जो भी केयर टेकर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आर वी गोइंग टू रेज दिस चाइल्ड एज अ बॉय या एज अ गर्ल। तो उसमें वन दैट चाइल्ड ग्रोज अप वो शायद अपने आप को कुछ और तस्लीम करे, बोले कि नहीं एक्चुअली आपने मुझे लड़की के तौर पे मुझे रेस किया, पर मैं अपने आप को लड़का समझता हूँ, या अपने आप को मैं कुछ और समझता हूँ, मैं अपने आप को ट्रांस या कुछ और समझता हूँ।
तो वो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ केयर टेकर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग योर चाइल्ड कि वो जैसा है वैसे ही मैं उनको तस्लीम करूँ। आप अक्सर मैं यही देखा है क्योंकि मेरा काम अक्सर जेंडर में ही होता है और मेरे पास काफ़ी ट्रांस लोग आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं मेरे से कि मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे में कोई खराबी है, मेरे बच्चे में कोई मसला नहीं है। आपके बच्चे में कोई मसला नहीं, आपके बच्चे में कोई खराबी नहीं है। आपके बच्चा इज जस्ट ए यूनिक person, a human being who is unlike the vast majority of humans. It is not better or worse to be trans. It's not better or worse to be intersex. These are all just different ways of. तो उसमें अब लोगों को फिर ये समझ आना जरा मुश्किल होता है क्योंकि उनको आदत नहीं है ये सारी डिस्कशन करने की। बट अल्टीमेटली आप इंसान की सेंस तो बदल नहीं सकते। आप इंसान की जो ख्याल है कि जो अपने आप को समझता है वो तो आप तब्दील नहीं कर सकते आप जितनी भी कोशिश करें। और वो सारी जो आपके साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं वेस्ट में भी पाकिस्तान में भी वो इस तरह के एफर्ट्स को बोलते हैं कि एक तो इनफेक्टिव होते हैं, दूसरा बहुत डैमेज करते हैं आपके आपके उस इंसान को जो जिसको आप अटेम्प्ट करें उनका सिम्स बदल। अगर आप किसी चाइल्ड को देखते हैं वो ट्रांसजेंडर है और आप बोलते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा चाइल्ड नहीं हो ट्रांसजेंडर, वो मुमकिन ही नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज someone's सेंस ऑफ their जेंडर आइडेंटिटी और वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है। जो बच्चे होते हैं अक्सर आप 2 या 3 साल के बच्चे से अगर आप पूछे कि लड़के ये क्यों पहनते हैं, लड़कियाँ ये क्यों पहनती है, तो वो आपको बता सके। वो बोलेगा कि नहीं लड़के ऐसे पहनते हैं क्योंकि लड़के ऐसे लड़की ऐसे पहनती है, लड़कियाँ गुड़िया से खेलती हैं क्योंकि लड़कियाँ गुड़िया से खेलती हैं, ये ऐसे ही है। और आप किसी 3 साल के बच्चे से पूछेंगे ये लड़का गुड़िया से खेल रहा है, वो हंसना शुरू हो जाएगा कि बिकॉज ये सारी सेंस ऑफ जेंडर एंड जी जेंडर रोल्स आर सो मतलब वो इतनी जल्दी आपको समझ आ जाते हैं बच्चों को बिफोर दे हैव एनी आइडिया ऑफ देयर सेक्सुअलिटी और एनी आइडिया ऑफ के कुछ होता है उसके अलावा। दैट इंटरनल शनाख्त वो इंटरनल जो आपकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो बहुत जल्दी बन जाती है। और बट लैला बस इसमें इधर में जी जी एक चीज सॉरी आपको अपने व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, एक चीज जो आपने बात करी केयर टेकर्स की, यू नो, एंड जब आपके पास आते हैं पेरेंट्स आते हैं या फैमिली मेंबर्स आते हैं और कहते हैं कि बस इसको फिक्स कर दो या इनको फिक्स कर दीजिए कि ये अपना जो जो नॉर्म के हवाले से एक्सेप्टेबल है सेक्सुअल ओरिएंटेशन उस पे ये उसकी तरफ ये आ जाए, राइट। एंड अगर हम सोचें इस बारे में जो अभी आपने बात बोली कि वी आर सो पैटर्न्ड, वी आर स्ट्रीमलाइंड, क्योंकि हमें जैसे कि आपने बोला कि 2 या 3 साल की उम्र से नहीं बट पेट से ही हमें बताया जाता है बॉय ब्लू गर्ल पिंक, बॉय कार्स गर्ल टीकअप। ये एक बहुत ही बेसिक सिचुएशन है। और अगर कोई 3 साल का लड़का हो जो पोचा वो मॉपिंग सेट या पोचे की तरफ उसका रुझान जा रहा हो, या अगर वो बेकिंग की तरफ जा रहा हो, या छोटी बच्ची हो जो फाइटिंग की गेम खेलती हो या गाड़ियों से खेलती हो, तो देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्लिकेशन बिकॉज फैमिलीज ये कहती हैं भाई ये नहीं, बट दिस इज नॉट सपोज टू बी अलाउड। सो और स्पेशली हमारा मुआशरा जहाँ पे इतनी तंगी है, इतनी सफोकेशन है कि हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअलिटी जैसे टर्म्स पब्लिकली शायद अब थोड़ी सी, बिकॉज अवेयरनेस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शिफाम इज ट्राइंग टू डू, रेज अवेयरनेस राइट नाउ, क्योंकि दम बिल्कुल ही एक सफोकेशन की तरफ ले जाया जाता है फॉर पीपल, फॉर इंडिविजुअल्स, राइट। एंड जैसे कि आपने कहा कि यू नो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, बट समटाइम्स लोग एट वन पॉइंट आके कहते हैं वी आर स्टिल डिस्कवरिंग, लेकिन हमें इतना रूम या स्पेस ही नहीं दिया जाता क्योंकि इधर देयर इज नो अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। खाला आ जाएंगी, मामी आ जाएंगी, सब केयर गिवर के ऊपर ऐसा एक
स्केलेटल ढांचा बन जाएंगे कि वो कहेंगे कि नहीं भाई डिसाइड करो, बताओ क्या करना है, किस तरह करना है, एंड द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल्स caregivers are just not given that opportunity. So bringing bringing about bringing this narrative about how to give yourself that kind of respect and freedom कि आप अपने लिए रिस्पेक्ट एंड अपने लिए बाउंड्री डिमांड कर सके, ये हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं या सिखा सकते हैं लोगों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी जी क्लैरिफिकेशन मैं बिल्कुल देना चाह बिल्कुल। रही हूँ कि सिन्फ और जिन्स में फ़र्क होता है। तो जी सिन्फ इज़ योर जेंडर आइडेंटिटी, जो जिसमें आप जब आप अपनी दुनिया में घूम रहे होते हैं बोलते हैं कि ये मैं हूँ। बिल्कुल। और आपकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, जिन्स जो होती है, वो दैट इज़ हु यू आर अट्रैक्टेड टू। तो दे आर नॉट द सेम थिंग, राइट? तो जेंडर आइडेंटिटी के बात हवाले से अगर बात करें तो मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, या मैं कोई और हूँ, जैसे उर्दू में नॉन बाइनरी लोग को सिंपल मुनफरिद कहा जाता है। जिन्स इज आई एम आई अट्रैक्टेड टू मैन, एम आई अट्रैक्टेड टू वुमेन, एटसेट्रा। तो वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है, और उसमें जस्ट बिकॉज अगर किसी का जेंडर आइडेंटिटी पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है। दैट माइट नॉट, दैट कुड चेंज बट नॉट। तो एक क्लैरिफिकेशन ये मैं देना चाह रही थी। अब इसके आगे जो है, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, सबसे पहले एक सवाल आप अपने आप को अगर पूछें कि ये मैं सवाल क्यों पूछा, व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आपने ये क्यों नहीं किया या फिर वैसे क्यों नहीं किया, इज इट फ्रॉम अ प्लेस के मैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँ, उनको मैं फ्रीडम टू ग्रो दूँ, या मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँ? आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, इसका मतलब है आप उसकी इंडिविजुअलिटी की असलियत आप दबा रहे हैं। वो असलियत कहीं ना कहीं और निकलेगी ज़रूर, ठीक है? क्योंकि वो दब नहीं सकती। आप जितनी भी दबाने की कोशिश करें, वो प्रेशर से कहीं और फट के निकलेगा बाद में। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी 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 बच्चे से पूछ रहे हैं, 3 साल का लड़का है, उससे पूछ रहे हैं कि पोचे की सेट क्यों लिया, आप उससे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जनरली क्यूरियस हैं कि इसको ये इंटरेस्ट है क्यों, इसमें जो इसको जो इंटरेस्ट है, ये सिर्फ एक पासिंग इंटरेस्ट है क्योंकि 3 साल का बच्चा है, और इज दिस समथिंग दैट उसको बड़ा शौक है? तो अगर आप उसको इनकरेज कर सकते हैं कि देखें कि ओके दिस इज इसकी इंटरेस्ट है, इसकी हॉबी है, इसको he has some sort of fascination with cleaning, so how can I encourage this, right? तो सवाल पूछना ऑन इट्स ओन इज नॉट रॉन्ग, इट इज आपका जो इंटेंशन है वो कहाँ से आ रहा है। आपका इंटेंशन है कि किसी को सपोर्ट करें बिकॉज उनकी जो जो भी हॉबीज हैं, जो भी इंटरेस्ट है, एज लॉन्ग एज दे नॉट हर्टिंग एनीबडी, किसी को मतलब किसी पे जुल्म नहीं कर रहे, या किसी का हक नहीं छीन रहे, तो there is nothing wrong with exploring these different types of things that might not fit आपके gender stereotypes में कि ये लड़के ऐसे करते हैं, लड़कियां ऐसे करते हैं, लड़कियां लंबे बाल रखती हैं, लड़के छोटे बाल रखते हैं, लड़के को लंबे बाल रखना है, तो उसमें किसी का क्या जा रहा है? It is not really affecting anyone else in terms of harming them या anything like that. दूसरी बात ये होती है कि आप तो ऐसे आपने कर, मगर लोग फिर अगला उनका सवाल ये होता है कि मगर लोग क्या, लोग तो सबसे पहले उनकी फिर फिक्र परेशानी ये होती है कि नहीं मैंने तो अपने औलाद को मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट दूसरे नहीं कर। बट अगर आप ये फिक्र अपने सामने में रखेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने औलाद को एक्सेप्टेंस देने से ही रोक रही हैं अपने आप, क्योंकि आपका आपके सबसे पहली परेशानी उस आपकी औलाद की वेल बीइंग के हवाले से नहीं है, आपकी सबसे पहली परेशानी है दूसरे क्या कहें। आपका फोकस ही, आपका ध्यान ही कहीं और चले जाता है। तो आप उसमें जो है आपको अपने चाइल्ड का एडवोकेट बनना, ये एक न्यूट्रल पोजीशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप जैसे देखते हैं काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं अपने चाइल्ड के लिए एडवोकेट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये मेरे औलाद है, इसको ये पसंद है, तो मैं इनकरेज। और दूसरे लोग बोलते हैं, ऐसे म्यूजिक फॉर एग्जांपल, म्यूजिक हमारी ट्रेडिशनली अगर आप देखें, इट्स नॉट वो आपके डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट इस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाता। तो अगर आप किसी आपके बच्चे को म्यूजिक का शौक है, और काफ़ी लोग फिर ऑब्जेक्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं इसका करियर शायद नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, और काफ़ी पेरेंट्स इनकरेज करते हैं उनको। दैट इज समथिंग दैट पीपल विल इनकरेज नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग जेंडर्ड, but because they think कि ये दिस इज माय चाइल्ड हु वांट्स टू
who wants to pursue something, and I encourage them to explore whatever they like. Similarly, अगर कोई जेंडर के हवाले से आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि यू डूइंग समथिंग दैट इज जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग, तो आप एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी ये है कि उनको एक्सेप्ट करें एज दे आर, और फिर उनके जब अगर दूसरे लोग ऑब्जेक्ट करें तो आप उस ऑब्जेक्शन को आप टैकल करें, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड कि नहीं आप बदलें क्योंकि दूसरे लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, आप दूसरे लोग को बोलें कि नहीं ये ऐसा है, इनको लेट देम बी। एंड इधर मैं एक और चीज कहती जाऊं एज अ मदर ऑल्सो, बिकॉज जानना और समझना कि पेरेंटल फीलिंग्स क्या हैं और पेरेंट्स किस डिलेमा से गुजरते हैं, बिकॉज अगेन मैं बहुत एज एन एडवोकेट माई सेल्फ मैं बहुत दफ़ा ये नैरेटिव शुरू करती हूँ माँ बाप के साथ, जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि एक इक्वेशन है, वहाँ पे आप का बच्चा प्लस whatever the situation is equal to the result. एंड अगर आप इक्वेशन को सही तरह थोड़ा सा दूर बैठ के देखें और समझें, यू आर नो वेयर इन द इक्वेशन, यू आर अ फैसिलिटेटर until your child becomes mature enough कि वो अपनी जिंदगी खुद संभाल सके, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। तो अगर हम बचपन में ही उनकी ये क्यूरियोसिटी को, उनके ट्राइंग टू डिस्कवर क्यूरियोसिटी को मार देंगे तो हाउ विल द चाइल्ड प्रोग्रेस, हाउ विल यू प्रोग्रेस? तो आई अंडरस्टैंड कि जो पेरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे कि अपने बच्चों को आप परमिशन नहीं दे सकते टू बी क्यूरियस और टू स्टे और रिमेन क्यूरियस. You just have to let them be curious, because like Leila said कि अभी नहीं तो बाद में that curiosity will trigger and they will try and figure out something or find themselves or discover new things. तो parents please थोड़ा सा facilitation की तरफ, and if you need counselors, there's counselors and therapists like Leila available जो गाइड करते हैं, जो सिखाते हैं, समझाते हैं और वर्क करते हैं पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को, अपने घर वालों को बेहतर समझने में. Which brings me, Leila, to this currently we are in the pandemic. It's 11 महीने हो गए, हम अभी भी इस लूप में हैं और आगे दिख रहा है कि और 4-5 महीने भी तकरीबन इसी तरह निकल जाए. So when we are talking about mental health, not just currently, but mental health of all those families and individuals जो इस कश्मकश में रहते हैं कि are we figuring out, are we finding, are we telling, are we not telling? Because like you said, जो लोग क्या कहेंगे वाला स्टिग्मा जो है वो इतना भारी लगता है. How can we, like again, progressing and understanding towards लोग क्या कहेंगे कि स्टिग्मा को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं अपने अपने लिए, नॉट लोगों के लिए, बट अपने लिए किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये होती है जब हम किसी के एलाय बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप एलायशिप की अपने के हवाले से आपने बात छेड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को अंदर आपको झांकना होता है कि ये मेरे पास मेरा पहला रिएक्शन. आपने अगर किसी ट्रांससेक्स को देखा है या किसी और सिंपी या जिनसी अफियत को आपने देखा है और आपका कोई रिएक्शन है, आप पहले अपने आप को देखें कि ये रिएक्शन है, उसको ऑब्जर्व करें. फिर ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप ये उसमें थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें कि ये आ रहा कहाँ, ये आ रहा सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल इंफॉर्मेशन, सोसाइटल मैसेजेस, आपको बहुत सारी मतलब आपको मीडिया से मिलते हैं, आपको फैमिली से मिलते हैं, आपको और भी जगह से मिलते हैं. उनको ज़रा गौर करके देखें कि मुझे क्या सिखाया गया है, मैंने क्या सीखा है इसके बारे में. ठीक है, और ये काफ़ी सटल तरीके से अक्सर होता है कि मैं आपको, जैसे मैं ट्रांससेक्स के बारे में बात करती हूँ, अगर आप टीवी पे देखेंगे ट्रांससेक्स की पोर्ट्रेल कैसी होती है, बहुत बुरी होती है कि या तो वो कत्ल हो जाते हैं टीवी पे अगर कोई ट्रांस कैरेक्टर है टीवी पे, या उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनका घर से निकाला जाता है, या मतलब पॉजिटिव पोर्ट्रेल मीडिया में आपको कम दिखे, बहुत कम दिखे.
बिल्कुल। उससे फिर आप इंटरनलाइज आपने क्या किया? आपने इंटरनलाइज किया कि ट्रांस होना गलत चीज़ है, शर्मनाक चीज़ है, बीमारी अ, है। बीमारी है, इस तरह की चीज़। और ये दीज आर कम्प्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि बीमारी नहीं है ट्रांस होना, और उसमें कोई देयर इज नथिंग मेडिकली रॉन्ग विथ यू एज अ ट्रांस इंडिविजुअल। मगर आपको सोसाइटी कुछ और कह रही है। आपके फिर शायद आपने कोई डिस्कशन किया होगा किसी के साथ, जिसमें अक्सर अगर आप शहर में रहते हैं तो आप रोडों पे सिग्नल पे आपको ट्रांस लोग देखेंगे जो भीख मांग रहे होते हैं। अब आपका एसोसिएशन यही होता है कि ट्रांस ट्रांस खवातीन, स्पेशली खादा खवातीन जो होती हैं, वो भीख मांगने वाली है। पर आपने गौर ये नहीं किया है कि वही भीख मांग रही क्यों है फिर? क्योंकि उनके पास अदर एवेन्यूज ऑफ इनकम है नहीं, क्योंकि उनको काम मिलता नहीं है, कि मिलता भी है तो निकाला जाता है अक्सर। अगर निकाला भी नहीं जाता है तो फिर इतनी इतनी मुश्किलात के सामने करना पड़ता है कि वो खुद छोड़ सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, लोग आपको मिसट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले इंटरनलाइज्ड, आपका जो फोबियाज होते हैं वो थोड़ा उनको आपको झांक के देखना होता है। सबसे बड़ा, जब अगर आपका कोई इंडिविजुअल आपके पास आता है, बोलता है मैं ट्रांस हूँ या मैं कोई और किस्म का माइनॉरिटी हूँ, सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि मुझे क्या पता है और मैंने कहाँ, इंस्टेड ऑफ उनसे जाके 50 सवाल पूछने के अच्छा ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है। आपको जाके थोड़ा सा उसको रिसर्च करें। मेरा मेरी ये एक एक रिक्वेस्ट होती है अक्सर लोगों के साथ कि सबसे आपकी क्यूरियोसिटी बड़ी बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे कि अच्छा मुझे इसके बारे में मालूम करना है, उसके बारे में मालूम, ये भी मुझे सीखना है, ये भी पता होना है। और आप उस बेचारा जो आपके पास आके आपको बहुत मुश्किल से मुझे उन्होंने हिम्मत करके आपको बताया है, उससे आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं कि वो डर के भाग जाएगा, चुप हो जाएगा। ओवरवेलमिंग, सो ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग। और दिन में 15 लोग उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। ठीक है, आई नो पर्सनली व्हेन आई केम आउट कि मुझे दिन में 7-8 कॉल्स आती थी कि आप मुझे ये सिखाएं। मैं क्या बैठ के पूरे दिन सिखाते रहो लोगों को जिनसे मैंने 5 साल से बात नहीं की है। यू नो, पीपल आई डोंट नो वेरी वेल, और इवन इफ पीपल आई नो वेल, तो बोला कि यार आप ये वीडियो देख लें या आप खुद गूगल सर्च कर लें, बहुत सारे रिसोर्स। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। ठीक है, एक अपने अपने प्रेजुडिस को, अपने बायस को आप देखें, फिर अपने आप को एजुकेट करें। और ये चीज़ है, अगर आप ये समझते हैं कि मैं बायस नहीं हूँ या मैं प्रेजुडिस नहीं हूँ या मेरे दिमाग में कोई स्टेरियोटाइप नहीं है और मैं हर शख्स को इक्वली ट्रीट करता हूँ, तो आप गलत है। बिल्कुल। क्योंकि हर शख्स के पास प्रेजुडिस होते हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आ, और वो प्रेजुडिसेस हमको ओवर टाइम हमने एब्जॉर्ब किए होते हैं सोसाइटी। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं हर एक को इक्वली ट्रीट करता हूँ, फिर आप फिर भी गलत है। क्योंकि अगर अगर इंसान ऐसे होते तो ये माइनॉरिटीज के पास जॉब्स होती, माइनॉरिटीज के इनकम लेवल्स भी सेम होते, और कुछ ना कुछ तो है। तो वो चीज़ है आपकी इंटरनलाइज प्रेजुडिस। अब लोग फिर समझते हैं कि अगर इंटरनलाइज प्रेजुडिस है तो मैं तो बड़ा आप मुझे बड़ा इंसान बोल रहे हैं कि मैं तो बड़ा इंसान हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ये इतना डीप रूटेड चीज है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पास हो रहा है। ठीक है, बहुत आपके सटल तरीके से आपने किसी को डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट किया हुआ और आपको अंदाजा नहीं होगा। तो ये जो है ना, काफी डीप रूटेड चीजें होती हैं, और हम सब करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ जो लोग जैसे जो ट्रांस नहीं है वो ट्रांस लोग के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम खुद करते हैं। मुझे काफी बार, एंड आई आई टीच दिस, मैं ये पढ़ाती हूँ, मैं क्लासेस भी कराती हूँ, और मैं पेरेंट्स के साथ भी बात करती हूँ, ट्रांसफर के साथ भी काउंसलिंग करती हूँ। एंड समटाइम्स मुझे भी अपने आप को रोकना पड़ता है कि ये मैंने क्यों सोचा है, ये कहाँ से आ गया। ये कोई पुरानी कहानी है जो मैंने अब्सॉर्ब की है, और ये कहानी को मुझे जरा इस पर थोड़ा सा मुझे ध्यान देना। बिल्कुल। तो अल्फा, एक तो टू प्रमोट सेंसिटाइजेशन किसी, हम्म, और वो कोई भी मौजू हो, it could be from fat shaming to bullying to, मतलब कि there's a whole load of discriminatory behavior happening. हम्म, बट आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की लैला, जिसके ऊपर मैं इस वक्त फोकस करना चाहती हूँ कि हमने बात तो की कि ठीक है, there's a lot of stigma and there's a lot of taboo and there's parental treatment and ये and वो and awareness, लेकिन there is a huge majority of families जिन्होंने रेस करे हैं बच्चे,
who are successful and really, really matlab, privileged for themselves. I'm not talking monetarily privileged, like privileged for themselves, their health, their success. They हम्म are successful individuals of the society हम्म world over and in Pakistan also. जो कॉर्पोरेट्स हैं जो प्रमोट करते हैं, देर आर अ कपल ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड मल्टीनेशनल्स जो प्रमोट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूसिविटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉरी. तो देयर इज, यू नो, देयर इज दिस, एक तो होता है ना दबा दिया, and we spoke हम्म about this, कि there has to be a positive depiction of the discriminated minorities also, because it's not like everybody is discriminated. There are a lot of individuals who have fully proven themselves to themselves and done हम्म wonders. तो हमारी जो नैरेटिव है कॉन्स्टेंटली हाय बेचारे वाले को क्यों प्रमोट कर रही होती है, वेदर वी टॉक अबाउट इन न्यूज, वेदर वी टॉक अबाउट इट इन हम्म प्रिंट मीडिया, हम उन खवातीन या मर्द हजरात के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे जो इस वक्त अपने करियर्स के पिनिकल पे हैं, जो इस वक्त जो भी are writers, are directors, are whatever profession they've chosen or have not chosen and have stayed at home, are partnering with somebody, our couple are living together, whatever they're doing, but they are leading successful lives. And हम्म success cannot be measured in terms of just monetary or finances or how you're doing in terms of your job, but successful as an aapke liye you are enough, right? So bringing a real positivity spotlight on everything. बिल्कुल बिल्कुल तो आप दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट in fact for breaking stigma, for increasing, enhancing the prospects दूसरे लोग के Mhm. लिए जो discriminated against हैं. uh, अगर मीडिया के बारे में बात होती है, जैसे अगर कोई ड्रामा सीरियल है, ड्रामा सीरियल में डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटीज की पॉजिटिव डिपिक्शन क्यों नहीं है? अगर आप किसी राइटर को जानते हैं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे आपने क्यों नहीं लिखा? अगर राइटर बोल रहा है कि मैंने लिखा है मगर वो मीडिया हाउस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है वो स्टोरी लाइन को, तो मीडिया हाउस से सवाल पूछे कि आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया ये. अगर कोई एक्टर है और वो नेगेटिव पोर्ट्रेयल कर रहा है, आप मुझसे सवाल पूछें कि आपने नेगेटिव पोर्ट्रेयल क्यों किया, आपने पुशबैक क्यों नहीं किया, आपने, क्योंकि एक्टर्स के पास भी काफी इन्फ्लुएंस होता है ऑन द स्टोरी लाइन, तो आपने क्यों नहीं इसको पुशबैक किया, आपने क्यों नहीं पूछा उनसे कि या तो मेरा को स्टार है या कोई और कैरेक्टर है आपके उसमें, उसकी पॉजिटिव डिपिक्शन क्यों नहीं? तो उनसे उनको अकाउंटेबल होल्ड करना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं, वेदर इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, व्हाटएवर, आप एचआर से पूछें आपकी पॉलिसीज क्या है. ठीक है, पॉलिसी तो आपने बना ली, काफी लोग बोलते हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज वगैरह, पर आप उनसे स्टेटिस्टिक्स देखें कितने हैं आपके पास. फ्रांस हो या खवातीन भी, क्योंकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी. और आप उसको चेंज करने के लिए कर रहे क्या है, एक्शन स्टेप्स क्या ले? क्योंकि बोलते बहुत सब कुछ लोग, बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं हम तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हम सबको ट्रीट करते हैं इक्वली, ये करते हैं वो करते हैं, बट अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो नहीं है. तो कुछ तो गैप है, कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही. तो आप फिर मुझसे पूछेंगे ठीक है, आप कौन सी ड्राइव कर सकते हैं, आप पॉजिटिव स्टेप्स क्या कर सकते हैं टू मेंटर विमेन, टू मेंटर ट्रांस पीपल, टू मेंटर रिलीजियस माइनॉरिटीज फॉर एग्जाम्पल, और सारे और किस्म के भी माइनॉरिटीज होते हैं, उनको मेंटर करने के आपने क्या एफर्ट्स किए. और एफर्ट्स मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने किसी क्रिश्चियन शख्स को रख लिया है, बट क्रिश्चियन शख्स जो है अक्सर जो होते हैं कंपनीज में वो स्वीपर का काम करते हैं. तो आपने स्टेटिस्टिक तो डाल दी कि देखिए मेरे पास क्रिश्चियन लोग हैं, बट उसकी उनकी वो अंडर एम्प्लॉयड है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इक्वल टू देयर एबिलिटी. वो शायद हो सकता है वो एक वर्किंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, पर आपने उनको सही से मेंटर नहीं किया कि उनको अपॉर्चुनिटीज आपने नहीं दी. अगर आप स्कूल में काम करते हैं, आप स्कूल में देखें, आप उनसे पूछें कि ठीक है आप व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर यू डूइंग टू टैकल प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन और अगेंस्ट जेंडर माइनॉरिटीज और अगेंस्ट अदर माइनॉरिटीज. तो सिर्फ ये कहना कि हम सबको बराबर ट्रीट करते हैं काफी नहीं है, बिल्कुल काफी, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो आप जो सोसाइटी के जो डिफॉल्ट है उसको आप बरकरार रखते हैं, और डिफॉल्ट ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है.
तो उसमें फिर आप एक्टिव स्टेप्स लेने होते हैं कि आप लोगों को मेंटर करें, उनसे जाके एक्चुअली पूछे कि आपकी कंसर्न क्या है। मैंने ये अक्सर देखा है, खासकर मर्द हजरात से, जब उनसे जाके बोलते हैं कि खवातीन के ये कंसर्न है अबाउट द वर्क प्लेस या अबाउट द हाउस, वो हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो किसी ने कभी बताया नहीं। अब उनको बताया क्यों नहीं गया? क्योंकि उनकी सुनवाई, या तो उनकी सुनवाई नहीं, उनको उनको स्पेस नहीं दी गई है कि बोलने की, या अगर अगर बोलने की स्पेस दी गई है तो उनकी बात नहीं मानी गई है, सीरियसली नहीं की है। तो फिर यहाँ भी आपको जो है स्टेप्स लेने होंगे कि आप क्रिएट करें ऐसी स्पेस जिसमें लोगों की एक तो सुनवाई हो और दूसरी उनकी बात मानी जाए, और तीसरी फिर बात मानने के बाद एक्शन स्टेप्स जो आपको लेने होते हैं वो सारी चीज़ों को, वो सारी डिस्क्रिमिनेशन को, ये सारे मसला को कम करने की, वो क्या हो। अच्छा, अब फिर आते हैं नैरेटिव्स के बारे में। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं या अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप प्रोफाइल किसको कर रहे हैं? ठीक है, तो आपने जाके जैसे है, देयर आर वेरी सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जेंडर माइनॉरिटीज, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक्सेट्रा। आप उनको ढूंढ के लाएं, आप उनको ढूंढें, आप उनकी 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 कहानियां आप बुलंद करें, उनकी आवाजें आप बुलंद करें, उनको बोलें कि देखिए दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल रिलीजियस माइनॉरिटी पर्सन, क्रिश्चियन, हिंदू, एक्सेट्रा, इनकी कहानी है। और उसमें एक सिर्फ फोकस ये नहीं करें कि एडवर्सिटी के ओवरकम करना है, वही आपकी जो नैरेटिव होती है ना कि भाई इनका मुश्किलात थी, इन्होंने खुद पर्सनल जिद्दोजहद के बेसिस पे उन्होंने ओवरकम किया है। उनके एलाइज ने क्या किया है, उनकी जो जर्नी है उसमें इनेबल किसने किया उनको, उनको मेंटर किसने किया है, उनकी एजुकेशन में कहाँ से उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है। ये सारे पाथवेज जो होते हैं ना, सिर्फ वो उनके बारे में बात किया जाए। ये जो स्ट्रक्चरल सोसाइटल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ये इस इंडिविजुअल के लिए कैसे ओवरकम हुए, क्योंकि सिर्फ उनकी पर्सनल स्ट्रगल के बेसिस पे नहीं हुई, और भी चीजें हुई। And when we talk about pathways, Leila, हम्म, तो बाकी ममालक में, या let's just say Western world, right? Because a lot of हम्म, the Eastern nations or the Muslim nations are struggle with this, ठीक है? With the acceptance of हम्म, of these key terms, this key concept and this inclusivity का एक concept जो है. When we talk about telling people, ठीक है, कि there should be legal implications, there should be legal awareness, कि हम्म, for example sex education should be a subject in all schools, whether it is government, private, public, whatever it is, कि हम्म, बच्चे प्री प्यूबर्टी उनको एक क्लास की तरफ से देयर शुड बी सेक्सुअल स्पेशलिस्ट जो बच्चों को सिखा सके, these are the transformations your body is are going to take place. Now we're talking specifically male and female, and this could also happen. When this happens, reach out to the counselor. When this happens, if you are a girl, if you're going through a pre-puberty or puberty or whatever it is, you reach out to the counselor. A lot of private schools have those counselors in place, but this kind of conversation and narrative is not happening. It might be happening on a personal child हम्म, or student to teacher level, जहाँ पे teacher detect कर लेती है कि बच्चा is going through some kind of a transformatory phase जिसके अंदर या तो वो बुली किया जा रहा है या तो he's going through something at through घर पे, घर की environment change हो रही है, शिफ्ट हो रहा है. अगर अगर वो लड़का है लेकिन उसको समझ आ रहा है कि she is or he is going towards the female gender or the female हम्म। likes. So, what kinds of legal protection do the marginalized communities in our country have? अच्छा, तो एक तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान की आइन है, विच जिसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, कि आप किसी की ह्यूमन डिग्निटी आप इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, और उसमें स्पेसिफिकली थोड़े अहकाम लिखे हैं, सेक्स इज वन ऑफ देम।
तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अवेलेबल होता है अगर आपको कोर्ट को पिटिशन करना है, बट वी ऑल नो कि हमारा कोर्ट सिस्टम है कैसा, कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम लग जाती हैं, सालों साल लग जाते हैं। हो सकता है आपको केस सक्सेसफुल हो, बट लीगल वर्ल्ड में हम एक चीज़ कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जस्टिस बहुत डिले हो जाता है। बट उसके अलावा भी अगर आप ट्रांसेस की बात कर रहे हैं तो एक फेडरल एक्ट हुई थी 2018 में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। उसमें भी काफ़ी हुकूक जो है रिपीट किए गए थे कि हाउसिंग के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, सेहत के हवाले से, पब्लिक मतलब पब्लिक गैदरिंग के हवाले से, वोटिंग के हवाले से, पब्लिक ऑफिस में खड़े होने और बहुत। और उसमें फिर आपके पास प्रोटेक्शन की है कि 2-3 इदारे हैं जिस पे आप जहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेरी राइट इन्फ्रिंज हो रही हैं, और फिर वो उस पर एक्शन ले। तो ये तो कानूनी तौर पे ये तो प्रोटेक्शन हैं बिल्कुल, पर्टिकुलरली फॉर ट्रांस पीपल, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी काफ़ी हद तक है। बट अल्टीमेटली जो है आपका जो लीगल सिस्टम होता है वो सोसाइटी के अंदर होता है। सोसाइटी लीगल सिस्टम के अंदर नहीं होती, लीगल सिस्टम सोसाइटी के अंदर होता है। तो उसमें आपके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा लीगल नहीं होते, वो सोसाइटल ज़्यादा होते हैं। सोसाइटल प्रेशर्स बहुत सारे होते हैं जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें अक्सर आपको मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर आप इसको एक देखेंगे, अ, ये ऑब्स्टिकल शुरू होते हैं शर्म से। अगर आप कोई चीज़ को ऐसे समझें कि ये शर्म की चीज़ है, अगर आप मुसलमान नहीं है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है और वो ये शर्म की बात, तो लीगल सिस्टम तो आगे की बात है। आप उसकी जो ट्रीटमेंट्स होंगी ऑन अ डे टू डे बेसिस, किसी से कोई लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते या पानी नहीं पीते, या उनको जॉब नहीं देते, बोलते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है या इम्प्योर है, अनक्लीन है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसके अलावा आप काफ़ी माइनॉरिटी से पता चलता है। अब आप हर चीज़ में तो आप जाहिर सी बात है कोर्ट तो नहीं जा सकते, डे टू डे डिस्क्रिमिनेशन। तो उसमें सबसे पहले यही गौर करना होगा, एक ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अपने के आप किस किस चीज़ को शेमफुल समझते हैं। मैं इसको शेमफुल समझती हूँ कि अ, अगर कोई जेंडर नॉन कंफॉर्मिंग है, कोई ऐसी चीज़ है, जैसे लड़की अपने बाल काट ली है, या कोई लड़का है जिसने थोड़ा सा काजल लगा लिया अपने आंखों पे, तो ये शर्म की बात है। अगर आप ऐसे समझते हैं तो उसको आपको थोड़ा टैकल करना पड़ेगा ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, क्योंकि आप उसको मैसेजेस, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि, मगर उसको पता चलता है। उसको आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, आपके रवैये से पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा, और उसकी वजह से उस शख्स का सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को वो कमतर समझना शुरू कर देता है। अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देता है, तो फिर उसमें फिर आगे जाके बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है कि वो रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क नहीं लेते हैं तो फिर आपके करियर एडवांसमेंट में इश्यूज हो जाते हैं, आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल दब के चुप होने का इम्कान होता है। अगर वो दब के चुप हो गए तो अक्सर गुस्से का मसला आ जाता है, क्योंकि वो एक ही तरीका है जिससे वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर सके। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। अम, बात उसकी, जब आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रही हैं, तो अगेन हमारी सोसाइटी में बेसिक अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। तो जैसे अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट रेट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप लफ्ज़ ब्रेस्ट ही नहीं बोल सकते पाकिस्तान में विदाउट लोग खड़े होके बोलने के आहा ओह ऐसे ये मसला है, ये दिस इज, हालांकि इट्स अ बॉडी पार्ट जस्ट लाइक एनी अदर बॉडी पार्ट, राइट? एंड इफ यू कांट मेंशन द बॉडी पार्ट, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बोलते मुझे इधर दर्द हो रहा है, इधर मुझे लंप दिख गया है, इधर हो गया। दूसरी, अगर आप खवात जेंडर वुमेन की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज के बारे में बात ही नहीं होती। आपको ब्राउन पेपर बैग में डाल के वो छुपा के आपको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट दे देते हैं अगर आप कहीं जाए। और मर्दों को मतलब और औरतों को यही बोलता है कि मर्दों के सामने भी बात। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू एक्चुअली एक्टिवली फाइट अगेंस्ट। अगर आप मर्द हैं, हैव दीज डिस्कशंस, encourage women to actually tell you
And कि also Leila, sorry to again bring this in, but जहाँ पे आपने लड़कियों की बात करी, उधर मैं लड़कों का भी आई वांट टू रेज द अवेयरनेस कि जिनके घरों में छोटे लड़के हैं who are exploring themselves and are discovering and are going through just realizing their own gender and body parts, अगर वो अपने आप को छू के देख रहे हैं कि है क्या उनके पास, what is this genitalia called, तो अगर आप बोलेंगे मत मत छुओ या मत हाथ लगाओ, क्या हाथ जाके धो, आपने उनको ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन दे दी है बगैर उनके पूछे कि तुम गंदे हो मत छुओ, अपने हाथ जाके धो, whereas it is their own extension of their own skin. उनका बॉडी पार्ट इज एन ओन देयर ओन एक्सटेंशन ऑफ देयर ओन स्किन. तो अपने बेटों के साथ स्पेशली मदर्स एंड फादर्स, अगर आप ये गुफ्तगू और ये नैरेटिव कंटिन्यू रखेंगे और शुरू करेंगे कि बेटा ये टेस्टिकल है, ये स्क्रोटम है, ये है, ये वो है, एंड मेक इट सो नॉर्मल, क्योंकि इसमें कोई शर्म नहीं है, आपका बच्चा है, आप उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि कोई बाहर से उठ के नहीं आएगा बताने. और वो जब सीखेंगे दूसरों के थ्रू, वो कहेंगे हमारे अम्मी अब्बू ने तो कभी इसके बारे में बात ही नहीं करी, एक्चुअली लाइक नॉट टॉक्ड अबाउट, इट्स एक्चुअली थॉट ऑफ रियली बैडली, वी कांट डिस्कस दिस अपने घरानों में. तो अगर हम बात नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस why predators come into this world, because they make it so comfortable to talk to your children about their sexuality. And that is when the most heinous crimes also take place, not all the time but sometimes. So sorry, coming back to talking about giving curiosity a name, making it normal, and everybody having their own normal. हाँ, तो देखिए, बॉडी पार्ट्स आर नॉट गुड और बैड, shameful or unshameful. Touch can be shameful. Touch can be good or bad. और बच्चों को यही सिखा सकते हैं कि देखिए, this is good touch, this is bad touch. Teaching children the difference between what is okay in terms of someone else touching you and what is not okay. ये चीजें बिल्कुल सिखाई जा सकती है, बट उसमें मसला ये होता है कि आपको पहले you have to start talking about their body in order to talk to them about touch. आप सिर्फ टच ऐसे हवा में नहीं बात कर सकते कि टच ऐसा ऐसा होता है. You have to point to a body part, saying कि touching this body part by another person is not okay. और टचिंग यू इन दिस वे इज नॉट. तो अब उसमें बाउंड्री की जब बात होती है तो बच्चे जो है ना प्रेडेटर से फिर अवॉइड, उनको पता नहीं होता कि प्रेडेटरी बिहेवियर है क्या, छोटे बच्चे. और प्रेडेटरी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बच्चों को बताएं कि देखिए दिस इज बैड, अगर कोई ऐसे करे आप तो उसमें फिर पाकिस्तान हैज वन ऑफ द वर्स्ट रेट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, पर्टिकुलरली विद इन फैमिलीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि इनकी भक्ति नहीं होती. इट इज कंसिडर्ड सो शेमफुल. अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन को बताता है कि किसी ने मुझे ऐसे छुआ या किसी ने कुछ मेरे साथ इस तरह की बुरी चीज की है, तो बच्चे को चुप करा देते हैं, बोलते हैं कि तुम चुप रहो, क्योंकि लोग कहते हैं. इंस्टेड ऑफ कंफर्टिंग द चाइल्ड, आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में या झूठ नहीं बोलो और आपको झूठा करार दिया जाता है, या तो ये कहा जाता है. तो this is an important part of tackling sexual assault and sexual abuse. It is actually telling children what good touch, bad touch is. और दूसरी चीज, लोगों की सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ये होती है कि नहीं, अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो जाके चीजें करना शुरू करते हैं. they'll go away and they'll have sex. आपको लगता है कि वो बच्चों को नहीं पता होगा. What they want, children will find out. In this day and age, particularly with what is available online, children know. What children do not know is what is safe and what is not. Absolutely. ठीक है, वो safe and not safe आपको सिखाना पड़ता है. वो सिखाने के लिए फिर आपको you have to start naming body parts. You have to say कि this is the penis, this is the vagina, this is the vulva, this is that, and this is how it works and this is what it's used for. और अगर कोई आपके साथ ऐसे करे, particularly for a child, then that's not okay. And that's how you have to do. Leila, I'm just thinking कि हमने शुरू तो की थी बात कि हम बात करेंगे about
discrimination and mental health, and we have been talking, हर किस्म की conversation, and that is why I love organic conversation, क्योंकि हम शुरू कहीं से करते हैं, हम किसी और तरफ आ जाते हैं, just so natural and so beautiful. लेकिन emotional support, because we have a very a few minutes left, and I think we need to get you on board again, because you are on the Shifam platform as a therapist and a counselor. So agar, if anybody wants to reach out to Leila Afsar, she is on Shifam ka platform and you can reach out to her. But keeping time in mind and tight knitting this conversation, let's talk about emotional support a little bit, especially under COVID, because we are going through the pandemic, and I wanted to talk about emotional support for those people who or those young adults who are, because again iske baad to we grow up post 18. If you discover yourself, then you have that kind of sense of self to take care of yourself, right? But for all those who are under 18 and who require that kind of emotional support, who are discovering their curiosity, um is what kind of emotional support can be given to them, by their families, by their caregivers, by their friends? एक चीज ये है कि क्यूरियोसिटी जो है आप बच्चों में आपको इनकरेज करता है एज ए सेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग हु दे आर. नाउ दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आप किसी को, so if a child wants to wear clothes that are slightly they are not commonly worn by one particular gender, or if they want to present in a certain way or they have different mannerisms, उनको कैसे एक्सेप्ट किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए. उनको स्पेसिफिकली सिर्फ ये इनकरेज करने की बात नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात नहीं, आपको बताना पड़ता है, बिकॉज अ चाइल्ड विल सी, उनको मैसेजेस हर जगह से मिलते हैं कि ये ऐसा नहीं होता है, ये वैसा नहीं होता है, ये गलत है, ये ऐसा है, ऐसा है. कुछ आपके चाइल्ड को उस बच्चे को बताना होगा कि इट्स ओके, वी आर हियर फॉर यू, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं. कुछ होगा, अगर कोई आपको कुछ कहे या करे, हम देख, वी आर हियर टू सपोर्ट यू अनकंडीशनली. और ये रीइंफोर्स करना पड़ता है, ये बार बार बताना पड़ता है चाइल्ड. तो बच्चों के अंदर बहुत डर होता है, और ये चीज़ें अगर सेफली एक्सप्लोर नहीं होंगी तो वो बाद में जाके फिर अनसेफली एक्सप्लोर होंगी. तो ये एक बहुत अहम चीज़ है. दूसरी चीज़, ये डिस्कशन सिर्फ उस वक्त नहीं होना होता जब आपको कुछ दिख रहा है. पहले से आप अपने बच्चों से बात करें, बोलें कि देखिए, gender is very complicated, your sexuality is very complicated, you'll have all sorts of feelings, you'll have all sorts of sensations, and that's a natural part of growing up. आपके जैसे हार्मोन मिक्स, आपका जो बड़ा as you go through puberty, बहुत इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, और आप उसको, अगर आप शेमफुल कहा जाए उनको, तो that's not going to help the child. आप उनको बोले कि ठीक है, it's a natural part of growing up. It's okay, you feel really intensely about this right now. That's absolutely fine. What can we do about it? Let's sit down. कम्युनिकेशन चैनल्स आप खुले रहे, एंड बच्चों को यही बताया जाए कि इसमें कोई हायरार्की नहीं है कि ये बेहतर है, ये कम बेहतर है, ये बिल्कुल कम बेहतर है, in terms of gender identity expression or other things in terms of their personhood. Because again, उसमें आप सिर्फ ये इम्प्रेशन नहीं देना चाह रहे हैं कि हम आपको टॉलरेट कर लेंगे अगर आप नॉन कन्फॉर्मिंग है, क्योंकि वो अगेन आप उस बच्चे को बता रहे हैं कि नहीं, आप कमतर. आप उनको यही बताएं कि we love you as you are, you can be whoever you like, and that's okay, and we're going to support you regardless. And it's based on trust and confidence. बिल्कुल, बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, अपने सबसे पहले अपने माँ बाप में ट्रस्ट करे कि नो मैटर व्हाट, दे आर देयर, दे आर स्टैंडिंग देयर.
Leila, even though time is up for us today, लेकिन मैं really truly मैं कहना चाहूँगी कि um, it has been such an informative session, even for me. Every day there's a new learning, और अपनी learnings को importance देना और उनका actually मजा लेना, because it is so invigorating to learn new things. So thank you also मेरी उर्दू में इजाफा करने का and मुझे बताने का कि there are so many terms that we can use. And I am hoping that I can have you back with us on stream again to talk about multiple different diverse topics under um, reaching out, understanding gender sexuality, transgender, discrimination, and then being supporting our own selves, understanding our own, like you said, our own phobias, our own judgments, our biases, and our prejudices, and then taking it on further and becoming advocates. So, thank you so much, Leila, and I hope to see you soon with us on another live on Shafam session. If you would like to Thank leave us with any parting words. Thank you, Rabia. It's been an absolute pleasure. And I would end saying कि आप with what I started, which is कि आप याद रखें किसी से जब बात कर रहे हैं कि अगर आप उनसे किसी किस्म का सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, सपोर्ट देना चाह रहे हैं, या उनको बदलना चाह रहे हैं. अगर आप उनको बदलना चाह रहे हैं तो वो आप you're doing some damage. So particularly when it comes. So Thank just you. bear that in mind and be kind to everyone. Be kind to everyone. Thank you so much. I hope you have a great weekend, Leila. And to all of you who are tuned in right now and will be tuning in later, have a great weekend. Respect everybody and not just be kind. Don't just be kind to others and yourself. Just be human. Be as humanly as possible. So thank you so much. Thank you, Leila. Take care. Khuda Hafiz.